dear student, welcome back here in my channel. I'm Ankita Singh, and as you all know that we have discussed about federalism, the second chapter of civics, class 10th. We have discussed about the federalism in the previous video. So this is the second chapter, and this is the second lecture of this chapter, and we have already covered some of the topics in the previous lecture. Yes, dear student, as you can see that we have covered this chapter, this page of the federalism. What is federalism? What is the federal system? And where federal system of governments is prevailing overall the country. ग्लोबल लेवल में कहाँ कहाँ फेडरेशन गवर्नमेंट प्रिवेल करती है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. तो नेक्स्ट और हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अब आगे चलते हैं कि हमें और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इस लेक्चर में. Yes, dear student, we have discussed about the features of the federalism also. So, what is the next which we have to learn and we have to know about it, about the federalism? The next topic is what are the different forms of federalism? What are the different forms of federation system? We are going to discuss about the different form of federation system or the federation government. So you just note it down the different forms of federation system and the federation government. चलिए देखते हैं कितने फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म होते हैं, फेडरल सिस्टम के कितने फॉर्म्स होते हैं. तो पहले देखते हैं. As you can see that it is also given in your book also. फेडरल सिस्टम के टू फॉर्म्स, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कमिंग एंड होल्डिंग. Understood, dear student? Now we can just see the definition, what is coming together and what is holding together definition. I will show the definition on your screen. You just note it down the definition with the example given. Firstly, we will see that what is coming together federation. A federation in which several independent states come together on their own to form a bigger unit so that by polling sovereignty and retaining identity, they can increase their security, such as USA, Australia. कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र स्टेट, स्वतंत्र राज्य आपस में खुद ही आके एक बिगर यूनिट को फॉर्म करें. जैसे कि यूएस में 51 स्टेट्स हैं, तो ये पूरे 51 स्टेट आपस में मिला के इनने एक कंट्री को फॉर्म किया, यूएसए, जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स कि जितने भी अमेरिका के स्टेट्स हैं उन सब की एक यूनिटी, एक यूनाइटेड एसोसिएशन, अमेरिका के स्टेट्स की यूनिटी. तो इसीलिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में आप अमेरिका लिख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं. ये ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें एक कंट्री के जितने इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो स्वतंत्र राज्य हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक बड़ा सा, एक खुद ही से आके मिलके एक बड़ा सा कंट्री को फॉर्म करते हैं. उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. Okay, dear student, you can note the definition of coming together federation along with the examples, because this question can be asked in your exam also. It can be asked in the definition with the example, or it can be asked in the distinguish between. So if you have the definition along with the example, you can write at least 2 points in this distinguish also and definition also. Okay, it will be help. Now next is holding together federation. You can see the definition of holding together federation. A federation in which a large country decides
to divide its power between the constituent states and national government, such as India and Spain. You can see that definition, and it is clearly, I think you can easily understand what is the definition is saying, that एक ऐसा सिस्टम कंट्री में जो प्रिवेल होता है जो कि कंट्री की पूरी पावर को डिवाइड करता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स में, जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड करता है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में हमने देखा कि वहाँ पे अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो आपस में मिल गए और एकजुट हो के उनने एक बड़ी कंट्री को फॉर्म किया. और यहाँ हमने देखा कि एक बड़ी सी कंट्री ने अपनी पावर को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया. जैसे कि इंडिया में भी आपने देखा है, इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ आपने देखा कि पावर कैसे डिवाइडेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल में भी हमारे पास गवर्नमेंट बॉडी है. तो इसके एग्जांपल भी आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. आपके पास अच्छा टाइम है अपने नोट्स को कंप्लीट करने का. जिसके पास बुक नहीं है वो इनकी हेल्प से भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने नोट्स को. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अभी बात की कितने फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन गवर्नमेंट है. चलिए डियर स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं. आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट्स मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री. क्या इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है? ऐसी क्या बातें हैं इंडिया में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इंडिया का है, ऐसी क्या बातें हैं इसमें? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया को क्या एक फेडरल गवर्नमेंट बनाता है. हम देखते हैं कि इंडिया को ऐसी कौन कौन सी इंडिया की ऐसी खासियत है जो इंडिया को एक फेडरेशन गवर्नमेंट बनाता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स बनाता है. जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया में बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स थे, ओल्ड राज्य थे, क्योंकि किंगडम्स थे. हमारे पूरी कंट्री की जो टेरिटरी है वो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थी. तो उसके बाद आज़ादी के बाद इंडिया में काफ़ी चेंजेस आए, इसके स्टेट का डिवाइडेशन में काफ़ी चेंजेस आए और कुछ न्यू स्टेट्स पूरे कंट्री को अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से वहाँ न्यू स्टेट्स को डिज़ाइन किया गया और अलग अलग स्टेट्स का नाम दिया गया. पहले हमारी कंट्री में डिफरेंट टेरिटरीज़ हुआ करती थी, उन सारी टेरिटरीज़ को वैनिश करके न्यू इस्टेब्लिश किए गए स्टेट्स को. तो यहाँ हम देखेंगे कि फेडरेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और इंडिया को क्यों एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. आप देख सकते हैं ये पॉलिटिकल मैप है 2006 का. और इंडिया में, क्योंकि इससे पहले हमने जो मैप देखा वो 1947 का था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस समय इंडिया की टेरिटरीज़ अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड थी. उसके बाद इंडिया के सारे पुराने ओल्ड स्टेट्स को, ओल्ड टेरिटरीज़ को, किंगडम्स को वैनिश करके न्यू स्टेट्स में कन्वर्ट किया गया और हमारे पास अब जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसी क्या खासियत है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री में बनाती है और उसको एक फेडरेशन गवर्नमेंट माना जाता है. जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यहाँ एक फ्लो डायग्राम दिया गया है जिसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बताया गया है. हमारी जो कंट्री है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अलग अलग लेवल्स के गवर्नमेंट के गवर्नेंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसमें कुछ जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट के, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव पावर के बारे में डिस्क्राइब करता है. वो पूरा डिस्क्रिप्शन लेजिस्लेटिव पावर के बारे में मिलता है हमें इसमें, ये दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर है इनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्री लिस्ट में है. जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं वो 3 लिस्ट में दी हुई हैं और अलग अलग डिफरेंट चैनल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स उसमें दी हुई हैं. पहला क्या है? यूनियन लिस्ट. सेकंड है स्टेट लिस्ट और तीसरा क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जो है इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं. यूनियन लिस्ट जो है वो 97 सब्जेक्ट्स हैं.
It includes subject of national interest such as defense, foreign affairs, atomic energy, finance and communication. Only the union government मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट. तो देखिए जैसे कि यूनियन लिस्ट दिया गया है तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है. देन इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, यूनियन गवर्नमेंट बोले, या फिर ये जो यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है. जो हमारी कंट्री का हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसकी बात है. यहाँ जितने नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये सारा यूनियन लिस्ट के अंडर आता है. सारी बातें यूनियन लिस्ट में कवर होती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट इंक्लूड है. इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है? स्टेट लेवल के इम्पोर्टेंस, मतलब कि एक राज्य के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आती है. जैसे अगर हम राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पुलिस भी आ जाती है. लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ डिफेंस, क्योंकि डिफेंस जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पार्ट होती है. पुलिस जो है हर राज्य की अलग अलग होती है. इसीलिए यहाँ पे डिफेंस जो है वो पूरे कंट्री के लिए है, इसीलिए ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है. पुलिस जो है वो स्टेट वाइज अलग अलग, जैसे कि यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, अलग अलग स्टेट की पुलिस की बात हो रही है यहाँ. देन ट्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट is the subject method of the state list. Agriculture of a particular state, commerce and irrigation of the particular states, ये सब state list के बारे में बात कहती हैं. Only the state government can pass law on these subject. सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इन सारे सब्जेक्ट के बारे में लॉज को पास कर सकती है, रेगुलेशन कर सकती है. नेक्स्ट जो लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट है. कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं. इट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये सारे सब्जेक्ट जो हैं 47 सब्जेक्ट वो सारे दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पे रिलेट करते हैं, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, यूनियन ट्रेड. तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एजुकेशन की बात हो रही है तो चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पूरी कंट्री आ गई. अगर वो रूल बनाएगी तो पूरी कंट्री के लिए बना रही है. स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक स्टेट की जिम्मेदारी उसके पास होती है. लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी रूल इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बनेगा जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, तो पूरे लेवल में, पूरे स्टेट में एक ही जैसा हर तरफ रूल लागू किया जाएगा. जैसे कि एजुकेशन के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कितने से कितने बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत होती है, मतलब कि कब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए. ये हर स्टेट में जैसे कि 7 to 14 ईयर्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए. ये हर स्टेट में लागू किया जाता है स्ट्रिक्टली. मैरिजेस के बारे में भी जो रूल है, जो माइनर हैं वो उनकी मैरिज वैलिड नहीं होती है. जब तक 18 से ऊपर साल के ना हो जाएं वो मैरिज नहीं कर सकते हैं. तो एक सर्टेन जो लिमिट है वो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर में प्रिस्क्राइब्ड है. तो ये सारी जो बातें हैं ये दोनों ही लेवल में होती हैं. इसीलिए ये कॉन्करेंट लिस्ट है जो कि दोनों लेवल की बातें करता है, दोनों लेवल की पावर की बातें करता है. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बनाता है. इसी वजह से इंडिया को फेडरेशन गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप, इन्हीं से समझ सकते हैं. यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स की लिस्ट. तो यहाँ पे ये क्लियरली स्पेसिफाई है कि फेडरेशन गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे पावर्स को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया जाता है. इसी फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं कि पावर किस किस तरह से अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड है. तो डियर स्टूडेंट, अब हम इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की. ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इनकी डेफिनेशन दी हुई है. आप ये डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में
तो आप इसकी डेफिनेशन लिख के और फ्लो चार्ट के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको फ्लो चार्ट भी दिखा दिया, मैंने आपको ये डेफिनेशंस भी दिखा दिए विद एग्जांपल। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसे यूनियन लिस्ट इनके सब्जेक्ट्स को है, इसमें भी वही बातें बताई गई हैं, बट जब आंसर आप लिखते हैं तो आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बोर्ड में आपका प्रेजेंटेशन ही आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं उस आंसर में, ये डिसाइड करेगा। बच्चे कहते हैं कि मैम हमने ये भी तो लिखा है, वो भी तो लिखा ही था, बट वो लिखने का एक तरीका होना चाहिए जो इफ़ेक्टिव बनाता है आपके आंसर्स को। अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी भी आंसर को, तो वो आपके आंसर को एक इफ़ेक्टिव लुक देता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये। जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं तो आपको खुद भी लगता होगा उनकी राइटिंग, उनकी कॉपी, उसका वर्क कितना इफ़ेक्टिव है, कितना एफिशिएंटली वर्क किया है उसने। तो ये सब देख के आपको भी लगता होगा कि मेरे से अच्छा तो किसी और का काम है। तो वैसे ही ह्यूमन नेचर है, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और जिससे हो सकता है आपका जो एग्ज़ामिनर हो, जो आपका कॉपी चेकर हो, वो आपको इससे भी हो सकता है कुछ नंबर ज़्यादा मिल जाएँ, कुछ कम मिल जाएँ। ये आपके आंसर प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ these list and you can write the answer of this question also. What makes India a federal country? This is one of the question for you also. इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है? क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन चैप्टर के बीच से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसीलिए मैं आपको चैप्टर के बीच की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप अच्छे से अच्छा कर सकें। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं इनकी डेफिनेशन को लिख के, उसके बाद प्रेजेंट करके एक फ्लो चार्ट को। इससे आप बता सकते हैं कि इंडिया को क्यों फेडरल सिस्टम कहा जाता है या फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में ही पूछा था, उस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। इसीलिए इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया, ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था इस चैप्टर का सेकंड वीडियो, सेकंड लेक्चर। आई विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट lecture over this chapter in the next period. Okay dear student, till then bye bye, take care.